Question number 1. Hydrogen and carbon dioxide gases are mixed in equal molar amount at 800 Kelvin. A reversible reaction takes place. At equilibrium, the partial pressure of H2 and carbon dioxide are both 10 kilopascal. Kp is given at 800 Kelvin. What is the partial pressure of CO in the equilibrium mixture? That's a very simple question, I must say. So we have hydrogen gas reacting with carbon dioxide gas, converting into steam and carbon monoxide. So I need to find out the equilibrium partial pressure of carbon monoxide. So let's suppose it is X. 1:1 का रेशियो है इन दोनों के दरमियान. तो अगर इसके X मोल्स हैं तो इसके भी कितने होंगे? X मोल्स. ऑलराइट, Kp का एक्सप्रेशन है हमारे पास. पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ये हो जाएगा x² ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का 10 किलोपास्कल है. तो हाइड्रोजन का भी 10 और इसका भी 10. Kp की वैल्यू इज गिवन 0.288 इक्वल्स टू x² ओवर 100. तो यहाँ से हो जाएगा x² इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.288. सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 5.4 and that's my answer. Okay, next question. Nitrogen monoxide reacts with oxygen in a reversible reaction according to the equation shown below. Okay, the partial pressure of each of the component in an equilibrium mixture are shown. So these are the equilibrium partial pressures. He wants us to find out the value of Kp. So that's an easy sort of question. Partial pressure of NO, and since NO2 has 2 moles in the equation, the power is square over partial pressure of NO के 2 moles and power is square into partial pressure of oxygen. Now equilibrium partial pressure is already given. NO2 का 20 है तो मैं 20 का स्क्वायर करूंगा. NO का 10 है, 10 का मैं स्क्वायर करूंगा और ऑक्सीजन का 30 होगा. तो यहां से हो जाएगा Kp इक्वल्स टू 0.133 और इसकी यूनिट होगी किलोपास्कल इनवर्स. इसलिए क्योंकि ये हो जाएगा किलोपास्कल स्क्वायर और ये हो जाएगा किलोपास्कल क्यूब. तो ये जब कैंसिल होंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोपास्कल, राइट. तो ये फिर फाइनल यूनिट बनेगी किलोपास्कल इनवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. For the reaction shown, an equilibrium is established at a temperature of 700 degrees Celsius. The equilibrium constant Kp for the reaction is 9.8 kilopascal. The partial pressure of N2O4 at equilibrium is given. What is the partial pressure of NO2 at equilibrium? Again, it's a very simple question. All right, guys. So let's write the Kp expression for this equation. The Kp equals to partial pressure of NO2 over partial pressure of N2O4. Kp की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 9.8. पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 वी नीड टू फाइंड आउट और जाहिर सी बात है इसके 2 मोल्स हैं तो इसका स्क्वायर होगा. तो इसको हम कर लेते हैं x² ओवर 80. सो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 9.80. So let me find out. 80 into 9.80 is going to be 784. तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 28 kilopascal. Okay, and that's my answer. Number 4. A mixture of 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen is allowed to reach equilibrium at 1 time 10 to the power 7 Pascal and 500 degrees Celsius. The equilibrium mixture contained 20% of ammonia by volume. Calculate the value of Kp for the reaction.
ओके, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. नाइट्रोजन गैस and hydrogen gas are reacting together, converting into ammonia. तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, एंड ऑब्वियसली ये 0 होगा. ठीक है. ठीक है, इसका 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, तो हम इसके लिए भी 2 मोल कर लेते हैं. ठीक है. इक्विलिब्रियम मोल्स. सो हम 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि x moles of N2 रिएक्ट हुए. ठीक है. तो अगर 20% बाय वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है आपके पास, तो ये तकरीबन हो जाएगा 0.2 मोल्स, राइट. तो मान लीजिए कि जनाब x मोल्स रिएक्ट हुए थे, तो ये हो जाएंगे आपके पास 2x, ये हो जाएंगे 3 माइनस 3x, और ये हो जाएंगे 1 माइनस x. यहाँ से x मोल्स रिएक्ट होंगे, यहाँ से 3x मोल्स रिएक्ट होंगे, यहाँ से 2x. ठीक. तो अगर 0.2 मोल्स मैंने डिटरमिन किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ यहां से 0.2, और जाहिर सी बात है ये 1:2 का रेशियो, तो अगर यहाँ से 0.2 है तो यहाँ से 0.1 हुए होंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1, और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 3, और x की जगह पे 0.1. सही है. तो मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ से 0.9, यहाँ से आ जाएंगे 2.7, और यहाँ से आ जाएंगे 0.2. अब यहाँ टोटल अमाउंट ले लेते हैं या टोटल मोल्स ले लेते हैं, तो ये टोटल मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.9 प्लस 2.7 प्लस 0.2, सो टोटल इज 3.8 मोल्स. मुझे केपी निकालना है, तो केपी निकालने के लिए मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा. तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिटरमिन करता हूँ, उसके लिए मुझे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है मेरे पास 0.9, टोटल मोल्स मुझे चाहिए 3.8, और प्रेशर क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1 × 10⁻⁷. तो यहां से पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 236,8421.05 पास्कल. सही है. अब मैं डिटरमिन करना चाहता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 2.7, टोटल आपके पास है 3.8, और प्रेशर ऑलरेडी गिवन है 1 × 10⁻⁷. तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा 7105263
0.16 Pascal. Then partial pressure of ammonia निकालना है मैंने, तो मोल्स ऑफ अमोनिया 0.2, टोटल मोल्स है मेरे पास 3.8 और प्रेशर होगा मेरे पास 1 × 10⁻7। so ये हो जाएगा आपके पास 526315.19 Pascal. Now I can find the value of Kp. तो मुझे अगर Kp कैलकुलेट करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया लूंगा। अमोनिया है आपके पास 526315.19 और इसका स्क्वायर करूंगा क्योंकि 2 मोल्स हैं इक्वेशन में। डिवाइड करूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विच इज 2368421.05 और मैं जो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है उसका क्यूब करूंगा क्योंकि 3 मोल्स है। इसका क्यूब हो जाएगा, तो यहां से Kp की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.26 times 10⁻⁻16 Pascal inverse 2. So that's my answer. Next question is, at a total pressure of 180 m, dinitrogen tetroxide is 50% dissociated at a temperature of 60 degrees Celsius according to the following equation. What is the value of the equilibrium constant Kp for this? Obviously Kp की वैल्यू उस वक्त निकालूंगा जब मुझे इन दोनों के पार्शियल प्रेशर फाइंड मालूम होंगे। तो चलें जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है उससे रिलेटेड बात करते हैं। ये है हमारे पास N2O4 रिवर्सिबल साइन 2NO2। मान लीजिए कि हमारे पास, एज्यूम कर लें कि हमारे पास 100% था इनिशियली, उसमें से 50% डिसोसिएट हो गया, तो बच कितना जाएगा 50%। अच्छा, अगर 50% डिसोसिएट हुआ है तो जाहिर सी बात है 2 मोल्स हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 100%, राइट। टेक्निकली देखो तो ये 0.5 है और ये 1 मोल है ना। सो टोटल मोल्स यहां से कितने आ जाएंगे 1.5। ठीक, मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 मालूम करना है। तो मोल्स आ जाएंगे 0.5, टोटल मोल्स आ जाएंगे 1.5, प्रेशर 1 दिया हुआ है, ये 1 आ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच 1/3 एटमॉस्फेयर। सिमिलरली मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कैलकुलेट करना है। तो मोल्स 1 है, टोटल 1.5 और प्रेशर जो है वैसे का वो 1 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 2/3 किलोपास 2/3 एटमॉस्फेयर। अब मुझे एक्चुअली Kp कैलकुलेट करना है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। Kp इक्वल्स टू partial pressure of NO2 and since it has 2 mole power square over partial pressure of N2O4। NO2 बेसिकली मेरे पास है 2/3, इसका स्क्वायर कर लो, N2O4 है 1/3, तो यहां से Kp की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.33 एटमॉस्फेयर। जाहिर सी बात है ये भी एटमॉस्फेयर है,
इसका स्क्वायर होगा और ये भी एटमॉस्फेयर है, तो ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल होगी तो एटमॉस्फेयर बच जाएगा, वो हमने लिख दिया। दैट्स एन इजी क्वेश्चन। 6 0.05 moles of N2O4 were placed in a sealed vessel of volume 1 dm cube at a temperature of 50 degrees Celsius and a pressure of this. The mass of the resulting equilibrium mixture was 4.606 gram. Calculate the average molecular mass. Okay, तो that means कि मुझे PV equals to nRT apply करना होगा, सही। और इस PV equals to, बल्कि हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई करके दिया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, PV equals to mRT अपॉन mR। ओके, हमें जाहिर सी बात है mR कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा mRT अपॉन PV। सारी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूले में प्लग इन करें। mR इक्वल्स टू मास कितना गिवन है हमारे पास, 4.606। R की वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर ऑल गैसेस विच इज 8.31। टेम्परेचर हमें गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर लेंगे, डिवाइड कर देते हैं प्रेशर से। प्रेशर हमारे पास है 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 1 dm क्यूब, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। सो गाइस mR इज गोइंग टू बी 73.6। Next, the number of moles of N2O4 that dissociated can be represented by N. State in terms of N the amount in moles of NO2 in the equilibrium mixture. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इंफॉर्मेशन है कि आपके पास N2O4 है, वो डिकम्पोज हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। भाई उसके इनिशियल मोल्स कितने होंगे हमारे पास, तो उसका इनिशियल अमाउंट कितना होगा, तो 0.05 ये गिवन है, और जाहिर सी बात है ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम के ऊपर उन्होंने कहा एक्स मोल्स डिसोसिएट हुए, तो अगर यहाँ से एक्स मोल्स रिएक्ट हुए तो यहाँ एक्स मोल्स बनेंगे, और क्योंकि 2 मोल है तो ये 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.05 माइनस एक्स, दैट इज गोइंग टू बी द रिमेनिंग अमाउंट। वो पूछा है मोल्स ऑफ NO2, वही मोल्स ऑफ NO2 तो 2, अच्छा n की टर्म में दिया है, ओ माय बैड, n की टर्म में दिया है, तो अगर n मोल्स रिएक्ट हुए तो n मोल्स फॉर्म होंगे, n मोल्स फॉर्म होंगे तो 2n हो जाएंगे, और ये 0.05 माइनस n, तो इट्स बेसिकली 2n। ओके, नेक्स्ट, the number of moles of N2O4 remaining at equilibrium is 0.05 minus n। तो आप नोट करें, मैंने यही चीज डिटरमिन की थी यहाँ, ठीक है, इसका मतलब मेरी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। ये वो कह रहे हैं स्टेट इन टर्म्स ऑफ n द टोटल अमाउंट इन मोल्स ऑफ द गैस इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। देखो आपके पास इक्वेशन थी N2O4 और ये कन्वर्ट हुआ था 2NO2 में, इक्विलिब्रियम पर आपके पास 0.05 माइनस n ये बच गए थे और 2n फॉर्म हुए थे। अब वो कह रहे हैं टोटल निकालो मोल्स, ठीक है, टोटल मोल्स। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल 0.05 माइनस n लूंगा, उसमें प्लस 2n करूंगा, तो मेरे पास 0.05 प्लस n आ जाएगा, ये मेरे टोटल मोल्स हो, ठीक, ये मेरा आंसर हो। फिर वो कह रहे हैं स्टेट इन टर्म्स ऑफ n द मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर आपको याद हो मोल फ्रैक्शन क्या था, मोल फ्रैक्शन मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी बताया था और अभी चैप्टर पढ़ा है उसमें भी बताया है। सो मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली मोल्स ऑफ गैस ओवर टोटल मोल्स। तो भाई NO2 के लिए कह रहे हैं वो मुझसे, है ना, तो मोल्स ऑफ गैस हमारे पास कितना था NO2 का, 2n इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे, और टोटल मोल्स कितने हैं 0.05 प्लस n, ठीक। फिर वो कह रहे हैं इन दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर द मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इज 0.4, यूज योर आंसर टू 2
and 4 to calculate the amount in moles of each gas present in the equilibrium mixture. ठीक है, okay. So mole fraction किसके इक्वल होता है? moles of gas over total moles is mole fraction. और मोल फ्रैक्शन एग्जामिनर ने आपको खुद से दे दिया NO2 का, which is 0.4 equals to moles of gas. आपने NO2 के कितने निकाले थे एट इक्विलिब्रियम? 2n. टोटल मोल्स कितने थे? 0.05 plus n. Now I need to solve this, okay? अब क्या होगा? इसकी वर्किंग मैं इस जगह पे कर लेता हूं. ये हो जाएगा आपके पास 2n equals to 0.4.05 plus n. ठीक, फिर ये हो जाएगा 2n equals to 0.02 plus 0.4n. फिर ये हो जाएगा 2n minus 0.4n equals to 0.02. फिर यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा 0.0125 मोल्स. ठीक है ना, वो मुझसे NO2 और NO2 और N2O4 दोनों का पूछ रहे हैं. तो मैं सबसे पहले N2O4 का कैलकुलेट कर लेता हूं. N2O4 का कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है मेरे पास 0.05 माइनस n था. अब हो जाएगा 0.05 माइनस n. n की वैल्यू हमने निकाली है 0.0125. तो N2O4 के मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.0375 मोल्स. तो ये आ गया 0.0375 मोल्स. अब वो कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो NO2. सो हम NO2 कैलकुलेट कर लेते हैं. NO2 के लिए हमारे पास था 2n और अब n कितना है? 0.0125. तो यहां से मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.025 मोल्स. आप यहां लिखिए 0.025 मोल्स. ठीक है, देन वो आपसे कह रहे हैं राइट एन एक्सप्रेशन. तो भाई एक्सप्रेशन लिखने दें, कोई मसला नहीं है. Kp का पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पावर स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल्स थे, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4. ठीक है, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में use the total pressure and make this one to calculate the value of the equilibrium constant in units. और पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए मैं सबसे पहले टोटल मोल्स फाइंड आउट करूंगा. तो भाई मैं सबसे पहले टोटल मोल्स डिटरमिन करता हूं और वो मैंने प्रीवियस पेज पे निकाल के दिए आपको. N2O4 का था 0.0375 इफ यू रिमेम्बर, और NO2 का था 0.025. मैं दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास टोटल मोल्स आ जाएंगे. वो हैं 0.0625. वन बाय वन अब मैं पार्शियल प्रेशर सबका कैलकुलेट करता हूँ, आई मीन दोनों गैसेस का. तो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एंड फॉर दैट थोड़ा सा नीचे कर लो. पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकालने के लिए मोल्स ऑफ NO2 चाहिए व्हिच इज 0.025. टोटल मोल्स चाहिए 0.0625 और प्रेशर जो है वो मेरे पास 1.68 इंटू 10⁵ चाहिए. सही है. सो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 हो जाएगा 67,200 पास्कल. सिमिलरली मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है N2O4 का. ये हो जाएगा आपके पास 0.0375 डिवाइडेड बाय 0.0625
इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यहां से मेरे पास कल आ जाएगा। अब जाहिर बात है मुझे केपी कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पावर स्क्वायर ओवर 800। ठीक, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी केपी की 44,800 पास्कल। ओके, यूनिट भी बता दिया और वो भी बता दिया। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, at temperature above 1500 HCl will decompose. A sample of 0.3 moles of HCl decomposed in a steel container. The resulting equilibrium mixture was found to contain this much amount of chlorine. Calculate the amount in moles of hydrogen and HCl present in the equilibrium mixture. Okay, तो सबसे पहला काम, ये 2HCl है, डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो रहा है H2 और Cl2 में। यहां से हम इनिशियल अमाउंट लेते हैं, इनिशियली ये 0.3 है, ये दिया हुआ, एंड इनिशियली ये दोनों क्या होंगे, 0। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो क्लोरीन का अमाउंट एट इक्विलिब्रियम गिवन है 1.50 इंटू 10 टू द पावर -2, और जाहिर सी बात है दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर ये है तो हाइड्रोजन भी इक्विलिब्रियम पे सेम होगा, व्हिच इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द रिएक्टेड मोल्स। क्लोरीन के कितने मोल्स बने हैं, 1.50 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट। आप जानते हैं कि ये 2 मोल है, आप जानते हैं कि ये 1 मोल है, राइट। तो अगर इतने मोल्स रिएक्ट होकर फॉर्म हुए तो यहाँ से रिएक्ट कितने हुए होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.03 मोल्स। इतने मोल्स रिएक्ट हुए थे। ठीक, सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन I can find the moles of HCl at equilibrium. Initially 0.3 थे, उसमें से 0.03 रिएक्ट हो गए, तो at equilibrium how many moles left, 0.27 moles। यहाँ लिख देते हैं 0.27। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। HCl कितना हो गया, 0.27। अब वो कह रहे हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। दैट्स द टफेस्ट पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड द टोटल मोल्स। तो मेरे पास 0.27 भी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 है, प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो यहां से आपके पास टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.3। मुझे मोल फ्रैक्शन डिटरमिन करना है सबसे पहले HCl का। सो मोल्स ऑफ HCl कितने हैं, 0.27। टोटल मोल्स कितने हो गए हैं, 0.3, तो यहां से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास 0.9। सिमिलरली मुझे हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन डिटरमिन करना है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। टोटल मोल्स आपके पास है 0.3, तो यहां से इसके मोल्स आ जाएंगे 0.05। ठीक, सिमिलरली मुझे क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन जो है वो आपके पास है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.3, तो यहाँ से मोल्स ऑफ क्लोरीन आपके पास आ जाएंगे 0.05। ठीक, तो HCl के कितने मोल्स आ गए हमारे पास, मोल फ्रैक्शन 0.9, हाइड्रोजन आपके पास है 0.05, और क्लोरीन भी आपके पास है 0.05।
डी पार्ट 1 एक्सप्रेशन लिखने के लिए कह रहे हैं तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 into partial pressure of Cl2 over partial pressure of HCl पावर स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए क्योंकि इक्वेशन में उसके 2 मोल्स थे। Let's move on to the next part of this question. Explain why the total pressure of the system does not need to be known. अब देखिए मैंने यहाँ पर टोटल प्रेशर कहीं भी नहीं दिया था आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है ये भी 2 moles and since the number of moles on both the side is same, so there will be no need of pressure. तो आप क्या लिखेंगे? As moles are same on both the side, then there will be no need of total pressure. Value of Kp find out करना चाहते हैं तो Kp equals to वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी हमारे पास, इन वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं। HCl है हाइड्रोजन 0.06 का स्क्वायर ले लेते हैं और ऊपर ले लीजिए 0.88, सॉरी नीचे डिनोमिनेटर में ले लीजिए 0.88 और उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से Kp स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 मोल्स हैं, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? होल्ड ऑन अ सेकंड। 0.06 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 3.6 into 10 to the power minus 3. 0.88 का स्क्वायर is 0.7744. तो Kp कितना हो जाएगा? 3.6 exponent minus 3 divided by answer. ये हो जाएगा 4.648 into 10 to the power minus 3. That's my answer. Okay. Next question, question number 8. Seems like interesting question. At a pressure of this Pascal, 1 mole of sulfur dioxide was mixed with 1 mole of oxygen gas. The final equilibrium mixture found to contain 0.10 moles of oxygen. Calculate the amount in moles of this in the equilibrium mixture. Okay. तो हम सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। यहां से हम इनिशियल अमाउंट डिटरमिन कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये 0। इक्विलिब्रियम पर सल्फर ऑक्सीजन गिवन है 0.505 मोल्स। तो हम यहां से रिएक्टेड अमाउंट सबसे पहले डिटरमिन करते हैं। इनिशियली 1 है, उसमें से 0.505 रिमेनिंग है एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्ट कितना होगा? 1 minus 0.505, so it's going to be 0.495 moles. ये रिएक्टेड है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इन दोनों में 2:1 का रेशियो है, तो अगर यहाँ से 0.495 मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो यहाँ से कितने मोल्स रिएक्ट हुए होंगे? सो
तो आप बताएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1। अगर यहाँ से 0.495 मोल्स रिएक्ट हुए तो यहाँ से कितने मोल्स रिएक्ट होंगे? सो मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो इट्स 0.99। सो मैं यहाँ से मोल्स ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लेता हूँ। इनिशियली 1 है, उसमें से 0.99 मोल्स रिएक्ट हो गए, तो बच कितने जाएंगे? 1 माइनस आंसर इज गोइंग टू बी 0.01 मोल। तो ये आ गया आपका 0.01 मोल। अच्छा, यहाँ से रिएक्ट कितने हुए? 0.99 मोल्स रिएक्ट हुए। क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है तो जाहिर सी बात है 0.99 मोल्स फॉर्म भी होंगे। ठीक, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.01, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.99। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए मैं सबसे पहले टोटल मोल्स डिटरमिन करूंगा। 0.01 है प्लस 0.505 है प्लस 0.99 है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.505 प्लस 0.99 is going to be 1.505 moles, right? सो मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए विच इज 0.505। टोटल मोल्स चाहिए मुझे 1.505 इंटू प्रेशर। प्रेशर क्वेश्चन के अंदर गिवन था, वो ये है 1.5 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। तो यहाँ से वैल्यू देखते हैं, 0.505 डिवाइडेड बाय 1.505, ये आंसर आया इंटू 1.5 एक्सपोनेंट 5। So it's going to be 50332.225. All right, that's my partial pressure. I hope it makes sense to you. Next, 2 moles of sulfur dioxide and 2 moles of oxygen were put into a 1 dmq flask and left to reach equilibrium. At equilibrium, the pressure in the flask was this, and the mixture contained 1.8 moles of sulfur dioxide. Calculate the value of Kp, stating the units. So, जो पहले क्वेश्चन किया था मोर लेस उसी तरह का है। तो हम यहाँ से इनिशियल मोल सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। ये 2 मोल्स है, ये भी 2 मोल्स है, ऑब्वियसली ये 0। इक्विलिब्रियम पर वो कह रहे हैं 1.8 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। सही है, तो यहां से हम रिएक्टेड मोल्स फाइंड आउट करते हैं। सो रिएक्टेड मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1.8 को 2 से डिवाइड करेंगे। जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान 2:1 का रेशियो है। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.8 मोल्स, सॉरी 0.9 मोल्स। ओके, तो मैं यहां से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम डिटरमिन कर सकता हूं। तो इनिशियली 2 है, उसमें से 0.9 रिएक्ट हो गया, तो हाउ मच लेफ्ट? ऑब्वियसली 1.1 मोल लेफ्ट। तो हम यहाँ पर 1.1 मोल लेफ्ट ले लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों का मोलर रेशियो सेम है, इसलिए रिएक्टेड मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड के केस में मैं 1.8 लूंगा। सो मैं यहाँ पर मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। इनिशियल मेरे पास 2 है और रिएक्ट कितने हो जाएंगे? 1.8 बिकॉज ऑफ 2:2 का रेशो। तो हमारे पास बच कितने जाएंगे? 0.2 मोल्स। वो ये आ गया 0.2 मोल्स। ठीक, सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल मोल्स
0.2 plus 1.1 plus 1.8 is going to be 3.1 mole. Okay, now I have to find out the partial pressure of each gas. So let me find out. सबसे पहले sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स है मेरे पास 0.2, टोटल मोल्स है मेरे पास 3.1 और प्रेशर क्वेश्चन के अंदर गिवन था इनिशियली दिस वन into 2 into 10 to the power 5. So ये हो जाएगा 12903 Pascal. Then I have to find out the partial pressure of oxygen, and for that moles of oxygen is 1.1 divided by total moles, which is 3.1. Pressure at 2 into 10 to the power 5. So it's going to be how much? 70968 Pascal. Okay. Now the next feature is कि मैं partial pressure of sulfur trioxide calculate करूं. So moles of sulfur trioxide कितने हैं? 1.8. Divide कर दूंगा मैं इसको 3.1 से into 2 into 10 to the power 5. So it's going to be how much? 116,129 Pascal. Oh, and I need to find out the value of Kp. Oh my goodness. That's a lot of working actually. So मुझे अगर Kp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड लूंगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है मेरे पास 116,129 और मैं इसका स्क्वायर इसलिए करूंगा क्योंकि इक्वेशन में उसके 2 मोल्स हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मेरे पास है 12903 और मैं इसका स्क्वायर इसलिए करूंगा क्योंकि इक्वेशन में इसके 2 मोल्स हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 70968. तो यहां से Kp की वैल्यू आ जाएगी 1.1 into 10 to the power -3 Pascal inverse. ठीक है? I hope it makes sense to you. And that's the end of this worksheet, guys. Thank you very much.